Let us all sit in any comfortable meditative posture. Spine, neck, head in one line. Shoulders and buttocks are in one line. We will be doing Om 3 times. Om will be longer, louder, and clearer. Followed by prayer to Rishi Patanjali and Gurus. Inhale. Om. Inhale. Inhale. Om. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन् पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन् मन्नाथ श्री जगन्नाथ
Shri Jagadguru Madatma Sarvabhutatma Tasmai Shri Gurave Namaha Dhyanamoolam Gururmurti Poojamulam Gururpadam Mantramulam Gururvakyam Mokshamulam Gurur Kripa Mokshamulam Gurur Kripa Mokshamulam Gurur Kripa. Put your hands by your side. With inhalation, take your hands up, inhale, stretch, and with exhalation, come forward and bow down to Adi Guru Shiva, Jagat Guru Shri Krishna, and your Nija Guru, your personal Guru, and to all the Rishis, Munis, Maharshis, Acharyas, Siddhas, and Sadhakas. Especially Rishi Patanjali and Kapila Muni. With Veda Vyasaji, because of whom today we are able to learn Sankhya, Yoga, Shadadarshana, Vedic scriptures so systematically, easily, and so that we can practice and reach the highest. So please connect to their energy, to their power, to their spirit, to their blessings, and absorbing their grace in you, slowly come up with the confidence that yes, we will reach our highest, our goal, which we think is the best, highest one in this very life itself. Allow your hands to come down. Namo Namaha. Welcome to the wisdom of Rishi Patanjali. Manana of Muni Kapila. Vedavyasji's vast effort to bring down this Vedic knowledge till Puranas, from Brahma Sutra, Veda, Upanishad to Puranas. And so that in different way, either through stories or through Shrutis or through studies, and putting that learnings into our practice, through practices, we become better and better. We purify our chitta. We reduce our vrittis. So much so that no vrittis are there. Zero vritti. We reach to the vritti nirodha state, niruddha state. Nirodha state, that is niruddha state, which is the highest avastha of samadhi, nirvichara state of samadhi, where we attain kaivalya.
get established in our own Rupa, Swarupa, which is nothing else but Sat Chit Ananda Avastha. And be there forever, eternally. And so for that, in diploma, we started with our Shad Darshana, and then Sankhya, and then Yoga. And in the diploma, we have done what is Chitta, what is Vritti, what is Nirodha, how can we do Nirodha with Abhyas and Vairagya, and Ishvara Pranidhana. And so when we are following Abhyas and Vairagya, we reach to the Guna Vaitrushna, so highest level of Parama Vairagya. And so that we reach Samadhi. And then Rishi Patanjali says that you can attain the same level of Samadhi by different Chitta Prasadana techniques, cleansing of Chitta, so that Chitta Vikshepa we can overcome. And so how to overcome Chitta Vikshepa, or how to overcome the Antarayas, the obstacles which comes in our path. And so Rishi Patanjali says that we want to practice Abhyasa, we want to follow Vairagya, but there are so many Antarayas, health issues, Vyadhi, etc., because of which we may not be able to do Abhyas and Vairagya. So ये अंतरायों को कैसे निकालेंगे? And so to come out of all the antarayas, not only antarayas, उसके 4 यार है, 4 दोस्त है अंतराय के, 9 अंतराय के 4 दोस्त थे, दुख दौर्मना angam ajayatva and swasha prashvasa, which are the results of 9 antarayas, and that's why they are always there with any of the antaraya. एक अंतराया है कि 5 है, लेकिन उसके साथ में ये 4 दोस्त रहते, दुख दौर्मना अंगम अजयत्व एंड श्वास प्रश्वास विक्षेप. So how to overcome them? For that Rishi Patanjali says Ishvara Pranidhana. Well, Sankhya believes in Ishvara, right? Akash? This is how we will ask question, very obviously, and then everybody will, very nice. I know. सब लोग ने पहले ये करके फिर ये किया. We know it. Sankhya does not believe in Ishvara. Sankhya does not believe in Ishvara. Or maybe whatever Sankhya is available for us, in that discussion about Ishvara is not there. That also can be true. We have spoken about that, right? So it talks about Purusha. But why we still call Sankhya Nirishwaravadi? Because if we need Ishvara in general, why do we need Ishvara? Ishvara कौन होते हैं in general? Creator. ईश्वर का सबसे बड़ा काम क्या है? Create. Creator. is the creator. जैसे आज हम लोग ने बोला ना कि सांख्य इज ईश्वरवादी, ऐसे. सो कल तो एक ने तो बहुत स्ट्रांगली, शी इज डॉक्टर इन डिप्लोमा, वेरी स्ट्रांगली, हम लोग सांख्य जब शुरू ही किया और मैंने पूछा कुछ सवाल कि सांख्य बिलीव्स इन व्हाट, बोले कि सांख्य बिलीव्स इन ईश्वर विश्व का क्रिएटर है. मैंने बोला उनका नाम मैं भूल गई आज, बोला आपको तो मैं फेल करूंगी. वेरी वेरी सिंसियर स्टूडेंट एंड वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो. मैंने कहा आपसे ही ये वाला आंसर नहीं एक्सपेक्ट किया था. करेक्ट. सो वेन एवर वी आर थिंकिंग और टॉकिंग अबाउट ईश्वर, ईश्वर मतलब हमारे लिए क्या है? सबसे बड़ा सर्जन करता. करेक्ट. क्रिएटर. सो अगर ईश्वर है तो उसको क्रिएशन, वो क्रिएटर ही होना चाहिए. दैट इज द बिगेस्ट रोल which we think should be played by God, Ishvara. But according to Sankhya, is this universe, world, Brahmanda, created by somebody? Is Sankhya believing in creationist theory? Process. No. Process. Sankhya believes in Evolution. evolutionary theory or evolutionist theory.
And so the world, the universe is evolved. किसने बनाया नहीं है. So अभी भगवान का रोल क्या आया? कोई भगवान का रोल बचा? अगर सृष्टि इवॉल्व हुई है और उसमें भगवान जी का कोई हाथ नहीं है, तो फिर भगवान का काम क्या है? और क्योंकि सृष्टि इवॉल्व हुई है और उसमें मेन दो ही तत्व है, पुरुष एंड प्रकृति. इस पुरुष मीन्स ईश्वरा. इस पुरुष, अमृता सोच के जवाब दो. इस पुरुष इज इक्वल टू ईश्वरा. पुरुष का मतलब ईश्वर है. यू आर गिविंग मी न्यू न्यू पॉइंट्स, एग्जाम में पूछने के लिए नए नए एमसीक्यूज. वैसे भी मेरे को नए नए एमसीक्यूज की जरूरत पड़ती है, और वो भी हमारे दायरे में रह करके. according to सांख्य ने, according to yoga also, is purusha means ईश्वरा. No, ma'am, it's pure consciousness. पुरुषा इज प्योर कॉन्शियसनेस. लेकिन ईश्वर प्योर कॉन्शियसनेस नहीं है. लेकिन कैसा वाला प्योर कॉन्शियसनेस है? उसको ऐसे ऊपर कलगी लगी हुई है. करेक्ट. उसने कुछ वो पहना हुआ है, मुकुट पहना है. कौन सा मुकुट पहना है? उसका एक आगर, एक सिनोनिम लगा हुआ है. क्या लगा हुआ है? विशेष पुरुष. विशेष पुरुष और पुरुष विशेष. करेक्ट. यस. तो वो स्पेशल पुरुष है, स्पेशल प्योर कॉन्शियसनेस. विशेष, खास पुरुष विशेष. So that's how Sankhya has maintained its duality. At the same time, equated Ishvara to Purusha, but kept it separate as something different for Purusha. क्योंकि अगर डिफरेंट नहीं रखते पुरुष को या ईश्वर को, तो फिर हम लोग क्या कहते हैं? ईश्वर प्रणिधान मतलब पुरुषों को प्रणिधान, पुरुष को पाने के लिए पुरुष को प्रणिधान. तो ईश्वर प्रणिधान could not have been a way, a process to realize who I am. करेक्ट. जैसे हमारे शंकराचार्य को भी कंफ्यूजन हुआ कि अद्वैत वेदांत अगर रखते हैं, ब्रह्मन इज द ओनली वन प्रिंसिपल, निर्गुण निराकार ब्रह्मन इज द ओनली कंसेप्ट. जस्ट लाइक पुरुष. पुरुष निर्गुण निराकार है कि सगुण साकार है? नहीं, उसमें तो 3 गुण है ना. पुरुष में तो 3 गुण है ना. नहीं प्रकृति में नहीं. अच्छा, तो पुरुष में 3 क्या है? वो सच्चित आनंद, वो क्या है? वो गुण नहीं है? त्रिगुणातीत. क्या है वो? रजस तमस और गुणातीत. तीनों गुण. रजस तमस वो गुण है, बराबर है. वो प्रकृति में वो भी बराबर है. लेकिन पुरुष में भी कोई 3 चीज है ना. अवस्था है. हाँ, क्या है वो? अवस्था. मतलब क्या अवस्था? सच्चित कौन आनंद. सी है? सच्चित आनंद. तो सच्चित आनंद वो उसके गुण नहीं है पुरुष के. करेक्ट. नेचर ऑफ गॉड. सत मीन्स पुरुष इज एवर एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल, वो हमेशा रहता है. चित्त मीन्स इट इज कॉन्शियस प्रिंसिपल, ये चैतन्य स्वरूप है हमेशा के लिए. एंड इट इज आनंद स्वरूप. सो सच्चित आनंद वो उसकी अवस्था है, उसका स्वरूप है. इट इज एस्टैब्लिश्ड लाइक दिस. सत मीन्स हमेशा के लिए, इसलिए उसको सत कहा गया है. वो कॉन्शियस है, चैतन्य, इसलिए उसको चित्त कहा गया है. चित्ता नहीं है, डबलता नहीं है. हाँ, हाफ्ता. इसीलिए अपने पतंजलि योग सूत्र में लास्ट वाला जो सूत्र है ना, चिति शक्तिर इति, हम लोग ने जब कैवल्य किया ना, आज भी आएगा. चिति शक्तिर इति, उसको चिति शक्ति बोला है. चिति शक्ति. चिति शक्ति मतलब प्योर कॉन्शियसनेस. चित्त, हाफ, चित्त. एंड अगर हम लोग माइंड के लिए चित्त शब्द यूज करते हैं, तो कौन सा चित्त है वो? हाफता है, वनता है कि 1.5 है? 1.5. ओके. चित्ता डबलता है, एक आधारता है, एक पुराता है. तो वो चित्ता मतलब माइंड, चित्त. इसलिए चित्त को हम लोग चिद भी लिखते हैं. द इन संस्कृत इज इक्विवेलेंट. ओके. खोड़ा मतलब नीचे ऐसे लाइन लिखते हैं. करेक्ट. सो आइदर चित्त और चित्त. करेक्ट. हाफ. इसलिए उसको चिति शक्ति, दैट पावर विच इज चैतन्यमय, दैट पावर विच इज कॉन्शियस. ओके. सो
Ishvara, when we talk about Ishvara Shabda means somewhere it has some guna. So whenever we are talking about Ishvara, it is Saguna Sakar. And when we are talking about Purusha, or even we are talking about Brahma or Purusha, both are Nirguna, Nirakar. No Akar, no Guna. Correct? Now, to focus our mind, थोड़ा डिप्लोमा में जाते हैं, ऋषि पतंजलि ने वो वाह 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 टेक्निक दी थी ना. Either you can use this or you can use that or you can use that. इसमें मैत्री करुणा मुदिता अपेक्षा नाम भी है. करेक्ट? सो ऐसे अलग अलग करते हैं. या तो प्राण के ऊपर खुश मत होइए, मतलब आप खुद बुरा मत मानिए और मेरे को ऐसा मत कहिए कि ओहो आपको याद है क्योंकि कल ही रिपीट किया है इसलिए मेरे को याद है, मैं भी भूल जाती हूँ. आई विल नॉट से दैट आई रिमेम्बर एवरीथिंग, लेकिन कल ही वो लिया इसलिए. सो वो जो वाह 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 टेक्निक है उसमें से प्राण के ऊपर ध्यान, मतलब प्राणायाम करोगे तो भी आपकी चित्त की वृत्तियां कम होगी, केओस कम होगा वगैरह वगैरह है. उसमें से एक ये भी दिया गया है कि कोई भी एक तत्व पे आप कंसंट्रेट करो, एक तत्व अभ्यास. या तो उन्होंने कहा है कि आपकी कोई भी एक्टिविटी है जिसमें आपका माइंड बहुत सारा काम करता रहता है, लेकिन इतनी सारी एक्टिविटीज ऑफ द माइंड इज हैपनिंग, बट स्टिल ऑल दैट एक्टिविटी इज रिलेटेड टू वन थिंग. And so that time I have mentioned that, over here Murti Puja works the best. Because when we are doing bhakti, when you are doing Murti Puja, when you are doing puja और उपासना, तो हम लोग क्या करते हैं? भगवान को कपड़ा पहनाते, भगवान के लिए खाना बनाते, भगवान की आरती करते, भगवान के लिए दिया करते, भगवान के लिए ये करते, भगवान के लिए वो करते, कितने सारा काम करते हैं. और जब हम लोग भगवान का ध्यान करते हैं उस वक्त भी कितना सारा करते रहते हैं. भगवान के मतलब वो आरती करते तो पैर से लेकर के सिर तक, सिर से लेकर से पैर तक, भगवान की आंखें कितनी महान है, कितनी निर्मल है, भगवान के हाथ कितने अच्छे हैं, भगवान मेरे को माफ कर रहे हैं वगैरह वगैरह. सो थॉट्स आर देयर, यस. सो मेनी थॉट्स आर देयर, यस. बट ऑल दैट थॉट्स आर कनेक्टेड टू हू? टू गॉड. नाउ इन दैट वी आर थिंकिंग अबाउट विच गॉड? निर्गुण निराकार गॉड. We concentrate then? We cannot. And so, to concentrate, because our chitta needs some akar. And so, straight away, for concentration on self, Purusha, to get the Purusha Khyati, through Viveka Khyati, it becomes difficult. And Rishi Patanjali, who being psychologist, understands this, that only abhyasa and vairagya together will not be sufficient for common men. We all will need, our chitta will need something similar, which is akar, which is guna. So then only we can concentrate. जो अभ्यास वैराग्य के बीच में जो अंतराय आते हैं वो कैसे निकलेगा? सो अंतराय को निकलने के लिए भी अभ्यास एंड वैराग्य करेंगे, लेकिन अभ्यास एंड वैराग्य में ही तो अंतराय आ रहे हैं. एंड सो ऋषि पतंजलि वांटेड अ वे आउट, जिसके द्वारा हम अंतराय भी दूर कर सके और हमारा अभ्यास एंड वैराग्य पावरफुल हो सके. सो इफ ही वांट्स टू गिव अ टूल, that app which helps in Abhyasa and Vairagya app also, and so it is supposed to be different. It is supposed to be not just Nirguna Nirakar, but it should have some kind of akar or some kind of guna in it. And so he has accepted Ishvara. And so whenever we talk about Ishvara means some akara has to be there. Instead of Nirguna Nirakar, whenever we are talking about Ishvara, then it is Saguna Sakara. अगर उसको सगुण बनाएंगे, मतलब सत्वरजस तमस वाला बनाएंगे, तो वो हमारे जैसे इंफीरियर हो जाएगा. करेक्ट?
और अगर हमारे जैसे सेंसिटिव है वो तो हमारे ही जैसा है, और हम लोग ऐसे ही बोलते ना कि भगवान भगवान भी तो यही सब करते हैं, लीला करते रहते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। करेक्ट, ये वाला हमारा सवाल इसलिए आता है क्योंकि हमने हमारे जैसे भगवान को बनाया। बट स्टिल भगवान, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ईश्वर, इज इट जस्ट लाइक अस? एंड जस्ट टू डिफरेंशिएट that the God, the Ishvara, is not just like us. If it is we, then we are bounded by karmas. When we are talking about Ishvara, जो मुझे मुक्त कराता है, अंतरायों में से निकालता है, तो वो वाला ईश्वर भी मेरे तरह क्लेश वाला है, बंधन वाला हो सकता है क्या? वो भी बंधन में, मैं भी बंधन में, जो खुद बंधन में, वो मुझे क्या मुक्त कराएगा? You understand? And that's why Rishi Patanjali has given definition of Ishvara what? Who has no karma, who has no klesha, who has no karma vipaka, कर्म के फल भी नहीं है। अगर कर्म के फल नहीं है तो बंधन भी नहीं है। So he has used the concept of Ishvara, but at the same time, he has given that Ishvara who is not having sattva rajas tamas guna. So when we are talking about Brahman, Nirguna Nirakara, Ishvara, Saguna Sakara, तो ऋषि पतंजलि का ईश्वर कैसा है? सगुण साकार है, निर्गुण निराकार है, दोनों है। हाँ ओमकार प्रणव में है। हाँ, वो प्रणव में तो मतलब आकार दिया, आकार है। आकार दिया, लेकिन कौन सा वाला? हमारे जैसा कोई नॉर्मल आकार दिया नहीं, स्पेशल आकार दिया। ओमकार। यू अंडरस्टैंड? सो ही हैज एक्सेप्टेड आकार बट स्टिल निराकार, साकार पर निराकार, गुणात्मक बट स्टिल गुणातीत। करेक्ट? तो उसमें उसमें सत्वरजस तमस से बना हुआ है, क्योंकि अगर सत्वरजस तमस से बना होता तो वो क्लेश होते, राग द्वेष वगैरह होते, वो भगवान जी पार्शियलिटी भी करते थे, वो सब कुछ करते थे, राइट? नहीं। एंड इसीलिए ऋषि पतंजलि ने वेरी स्मार्टली वो ईश्वर बनाए, या तो वो ईश्वर की व्याख्या दी जो सगुण साकार भी नहीं है एंड निर्गुण निराकार भी नहीं है। करेक्ट? एंड सो ईश्वर की जरूरत सांख्यों को नहीं पड़ी थी, बराबर? डिड सांख्य नीडेड ईश्वर? क्योंकि सांख्य इज नॉट बिलीविंग इन क्रिएशनिस्ट थियरी। इज योगा बिलीविंग इन क्रिएशनिस्ट थियरी? नो, इवन योगा इज नॉट बिलीविंग इन द क्रिएशनिस्ट थियरी। सो इज योगा और इज ईश्वर ऑफ योगा इज सृष्टिकर्ता? नो, ही इज नॉट सृष्टिकर्ता। करेक्ट? सृष्टि इवॉल्व हुई है, इसीलिए वो मुझे बंधन में से मुक्त कराएगा क्या? लाइक नॉर्मल भक्ति मार्ग में हम लोग बोलते हैं कि हम तकलीफ में है तो भगवान जी कृपालु है, भगवान जी मर्सीफुल है, तो वो हमें निकालेंगे और इसमें से लेके जाएंगे। नहीं, वो ये नहीं कहते अगर मुझे मुक्त होना है तो कोई और मेरे लिए काम कर सकता है? खुद को काम करना है, खुद को अभ्यास वैराग्य करना है, खुद को तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान करना है, खुद को ही, स्वयं को ही अष्टांग योग की प्रैक्टिस करनी है। सो थ्रू माय प्रैक्टिस, थ्रू माय ओन श्रमा, I can overcome all the kleshas and vrittis, so there will not be any karma, or if there is any karma, but it is which karma? Neither shukla nor अशुक्ला। नाइदर शुक्ला मतलब सफेद कर्म भी नहीं है, मतलब अच्छे कर्म भी नहीं है, पॉजिटिव कर्म भी नहीं है। नाइदर कृष्ण ब्लैक कर्म, यानी कि बुरे कर्म या तो सिंफुल कर्म भी नहीं है। सिंफुल कर्म है तो भी उसका फल है, पाप कर्म है तो भी फल है, और पुण्य कर्म है, शुक्ल कर्म है तो भी फल है। लेकिन योगियों के कर्म है वो कैसे होते हैं, जिसको हम कर्म योगों में बोलते हैं ना न्यूट्रल कर्म, अकृष्ण अशुक्ल कर्म, पाप वाले भी नहीं, पुण्य वाले भी नहीं। इट इज न्यूट्रल कर्म। इट इज बीन डन फॉर द सेक ऑफ डूइंग, बिकॉज इट वॉज नीडेड, not out of any other motive. And that's why, who is Ishvara? Ishvara is that who has no karma. When we say no karma, matlab what? Which no karma? Neither Shukla karma nor Ashukla, yani ki Krishna karma. So, whatever karma Ishvara does, you know,
he is not doing it out of any motive. खुद के लिए, किसी को मदद करने के लिए, no. It is been done or it happens for the overall universal principle. इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, ईश्वर का जन्म, ईश्वर जन्म लेके आते हैं, ईश्वर प्रकट होते हैं, ऐसा कहते हैं, राइट? ये वाली बात हमने की थी, लेकिन मैंने शुरुआत अलग ढंग से किया. भगवान जी प्रकट होते हैं, ईश्वर प्रकट होते हैं. वो अपने खुद के कर्म के फल की वजह से आते हैं क्या? अच्छे कर्म या बुरे कर्म की वजह से? नो. दे कम फॉर जागतिक, फॉर वैश्विक कार्य के लिए आते हैं. करेक्ट? विश्व में जो भी चीज बदलने की जरूरत है या नई चीज एस्टैब्लिश करने की जरूरत आती है, इसके लिए वो भगवत गीता में क्या कहा गया है? भगवान जी क्यों जन्म लेते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य. क्यों? ग्लानिर्भवति. धर्मस्य जब ग्लानिर्भवति. अधर्म का हाँ, अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म का संस्थापना करने के लिए. आजकल है ना, मेरी प्रार्थना में मैंने ये लाइन ऐड की है. रोज सुबह जब भगवान जी को हम लोग प्रार्थना करते हैं कि भगवान जी बहुत अधर्म बड़ा है, राइट? उसका नाश होना बहुत जरूरी है. अधर्मनो नाश, धर्मनी संस्थापना एंड वैदिक विचारों की पुनഃस्थापना. Correct? That is what is universal need, or that is what is what ईश्वरीय कार्य, भगवान का कार्य. और उसके लिए वो अपने कोई कर्म की वजह से नहीं आए हैं. समाज की, विश्व की जरूरत होती है, तब वो शक्ति प्रकट होती है. करेक्ट? एंड सो ईश्वर ऑफ ऋषि पतंजलि इज व्हाट? फॉर व्हाट पर्पस? Ishvara is for the purpose, one purpose. Why? That we all can work hard and can come out of all the vrittis, kleshas and samskaras. How can we come out of these vrittis, kleshas and samskaras? Either abhyas and vairagya और ईश्वर प्रणिधान. करेक्ट? ईश्वर प्रणिधान के द्वारा हमारे क्लेशों को कम करना है, या तो वृत्तियों को कम करना है, या तो उसका मतलब है संस्कारों को जीरो बनाना है, नो थॉट लेवल पे पहुंचना है, निरुद्ध स्टेट तक पहुंचना है. एंड सो व्हेन वी हैव टू रीच दिस लेवल, वी नीड अ concept which is God. Correct? And for generally, whenever we are talking about God, we always think about God as, Sundar Bhagwan. Correct? अरे अगर वो कंसेप्ट निर्गुण निराकार रखना है, तो उसको सुंदर क्यों बना रहे हैं? उसको क्यों सुंदर बना रहे हैं? हम भगवान जी की मूर्ति जो बनाए वो क्यों सुंदर बनाई? हमने भगवान जी की जो उनका घर बनाया, मंदिर बनाया, वो क्यों सुंदर बनाया? क्यों? इस भगवान को ह्यूमन बीइंग, हम लोग ने जब कभी भी भगवान जी के बारे में सोचा, तो हम लोग ने उनके बारे में क्यों ऐसे सोचा कि भाई वो उनका कोई आकार है? why we did that? Why we did that? Because our concentration. हाँ, very nice. ऑब्जेक्ट के लिए. For our mind need, our chitta need some akar to concentrate on. If that akar has no akar, if it is nirakar, आज भी हमने वो किया ना, how to concentrate on nose tip, जिसका कोई आकार नहीं, वो दिखता ही नहीं है. करेक्ट? या तो लास्ट ईयर हमने वो वाली कौन सी की थी? आज हम कागज भूचरी. हाँ, इस दफे भूचरी नहीं है ना हमारे उसमें. हाँ, शीतल आप भूचरी कर रहे थे. यस हाँ, इसलिए मैंने कहा कि आपका गलत है. तो भूचरी करते, तो भूचरी में क्या करते थे हम लोग? ऐसे ऐसे करके, हाँ, वो कोई नाप नहीं लेते थे. हम ये करते थे, मतलब ये वाली जो लास्ट फिंगर है, उसका जो टिप है, नेल का जो टिप है, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते थे. जब हमारा कॉन्सेंट्रेट स्थिर हो जाए, फिर हम हाथ नीचे रख लेते थे. फिर वहां पे क्या है? मेरी उंगली है, मेरा नाखून है, कुछ भी है वहां पे? नथिंग. एंड सो butchery means we are trying to concentrate on nothing. How can you concentrate on nothing? Is it easy? And so we put something there.
And then we take away that something. And so that we can concentrate on it. Exactly like that. We produce some akar, we connect to that akar, and when our mind becomes capable of concentrating, focusing on nothing, then we take away that akar. And so for this purpose, Rishi Patanjali, even though fully believes in Sankhya, and that's why he accepts no role of Ishvara in creation, as well as in salvation, as well as in emancipation, as well as in mukti, still introduce Ishvara for our mukti. Correct? Ishvara is for our mukti, of course. Ishvara is for our what? Ishvara is for our vritti nirodha. अगर हमारी वृत्ति निरोध होता है तभी जाकर के समाधि अवस्था में जाते हैं, हाईएस्ट लेवल की समाधि में, तभी जाकर के हम कैवल्य की प्राप्ति कर सकते हैं, राइट? कैवल्य तक पहुंचते हैं. And so he being psychologist, he accepted the role of Ishvara which was not there in Sankhya. And so very smartly he introduced that Ishvara who is Nirakara as well as Akara, who is Nirguna as well as Saguna. Correct? ओम में कोई अगुण है? ओम में कोई गुण नहीं है, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ द आकार फिर हम इस हिसाब से जप कर सकते हैं, उस हिसाब से जप कर सकते हैं. ऑल दैट processes we can introduce in that. Yes. And so very smartly Rishi Patanjali has बाइंड किया है, मर्ज किया है दो फिलोसॉफीज को, निर्गुण निराकार एंड सगुण साकार में से बेस्ट उन्होंने रखा है निर्गुण साकार ईश्वर. रिमेंबर दिस वर्ड्स. ओके, करेक्ट? According to Rishi Patanjali, Ishvara is not having sattva rajas tamas, correct? Omkar has sattva rajas tamas? No. So it is nirguna. But it has some akara. Correct? Omkar in itself is om akar. Correct? Omkar. Correct? Yes, it is akara. So Rishi Patanjali's Ishvara is nirguna साकार. वेदांत निर्गुण निराकार, भक्ति मार्ग सगुण साकार ईश्वर. लेकिन ऋषि पतंजलि का ईश्वर इज निर्गुण साकार. वेरी नाइस. निर्गुण साकार. एंड सो हु इज ईश्वर? पहले तो ईश्वर को क्यों इंट्रोड्यूस किया ऋषि पतंजलि ने? ऋषि पतंजलि ईश्वर को एज व्हाट इंट्रोड्यूस किया? इधर अभ्यास वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान. सो अभ्यास वैराग्य एंड ईश्वर प्रणिधान इज व्हाट? इज द वे टू डू चित्तन वृत्ति निरोध. करेक्ट? याद आ रहा है चित्त वृत्ति निरोध कैसे करेंगे? सो निरोध वी कैन डू आइदर अभ्यास वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान. So Ishvara Pranidhan is one of the important way through which we can overcome, we can stop all the vrittis and we can reach to Nirodha Avastha. No vritti at all, zero vritti state. That is the highest samadhi state. And so, अभ्यास कैसे करने का ऋषि पतंजलि ने दिया है? वैराग्य कैसे डेवलप करने का कहा है? यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय एंड देन वशीकारा, जहां पे श्रुत क्या है, सुना हुआ या देखा, अनुश्रविका एंड जो देखा हुआ है वो वाले भी वस्तुओं की इच्छा नहीं रहे. एंड देन फाइनली गुण वैतृष्ण्य तक जाएंगे तो हमें समाधि अवस्था प्राप्त होगी. ये वाली पूरी सिस्टम बताइए. एग्जैक्टली लाइक दैट. ईश्वर प्रणिधान से हम चित्तवृत्ति की निरोध कैसे करेंगे? डिड ही से द प्रोसेस? यस, ही डिड. एंड सो टू गिव द प्रोसेस
first what he did is, which he does always, he clarifies and he defines. अभ्यास मतलब क्या डिफाइन किया है, वैराग्य मतलब क्या डिफाइन किया है, आसन मतलब क्या, प्राणायाम मतलब क्या, all that, योग मतलब क्या, all that thing he defined. Correct? Exactly like that. He defined what? He defined what is Ishvara or who is Ishvara. And so, what is Ishvara or who is Ishvara? And then he says, Klesha, Karma, कर्म Vipaka, विपाक Ashayai, आशय Aparamrishta, अपरामृष्ट Purusha पुरुष Vishesha, विशेष ईश्वर. ईश्वरा. पता नहीं क्यों मुझे ये ईश्वर के टॉपिक इतने पसंद है, मैंने एक भी पेपर बाहर निकाल के नहीं रखा. मैंने बोला हाँ, क्लेश, कर्म विपाक, आशय, अपरामृष्ट, आशय पुरुष विशेष, अपरामृष्ट ईश्वरा. दिस इज व्हाट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ईश्वरा. हु इज ईश्वरा ईश्वर. और व्हाट इज ईश्वरा. सो कौन है ईश्वरा, कौन है ये ईश्वर भाई. ऐसे हम लोग ने बोला था ना, अल्लाह मियाँ. और क्या बोलते हैं, गॉड नहीं, मैंने अच्छा वो शब्द वो मैंने बहुत प्रास बिठा करके लिखा था. एनीवे, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, राइट. हु इज दिस ईश्वरा. ईश्वरा इज दैट कंसेप्ट. रिमेंबर, ईश्वरा इज दैट कंसेप्ट हु इज नो क्लेश. व्हाट आर द क्लेशस. अविद्या, अस्मिता, राग, राग द्वेष, द्वेष अभिनिवेश. अभिनिवेश. ईश्वरा इज स्पेशल पुरुष. पुरुष है, पुरुष में अविद्या हो सकती है. when we are talking about purusha, pure consciousness, it is sarvagya, omnipotent, right. so ईश्वरा तो क्या है, विशेष पुरुष है, स्पेशल पुरुष है. तो वो भी ओमनीपोटेंट होगा, ओमनीसाइंट होगा, सर्वज्ञ, ओमनिशियंट. ओमनिशियंट होगा, सर्वज्ञ है वो. तो उसमें अविद्या कैसे हो सकती है. और अगर अविद्या होगी तो बंधन होगा. इज ईश्वर बाउंडेड बाय एनीथिंग. नो. इसलिए द डेफिनेशन ऑफ ईश्वर इज दैट कंसेप्ट हु हैज नो क्लेश. सो नो अविद्या, बिकॉज अविद्या नहीं है इसलिए अस्मिता नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, और इसीलिए अभिनिवेश भी नहीं है, क्लिंगिंग टू लाइफ भी नहीं है. वो आता है सृष्टि का काम करने के लिए और फिर चला जाता है. उसको कोई दुख नहीं होता है आने का जाने का. हमको तो होता है ना, हमारा भी और किसी और का भी, हमारे आजू बाजू के लोग का भी, राइट. करेक्ट. और हम लोगों को तो हर एक छोटी छोटी चीज को, हमारा मेरा तो डॉग थोड़ा दिन पहले बीमार हो गया था, तो कितनी प्रार्थना कर कि भाई भगवान उसको बचा लेना है. भाई उसके कर्म है, सब कुछ हम समझते हैं, लेकिन यू अंडरस्टैंड, या वी गेट अटैच. इज ईश्वर एवर गेट अटैच्ड. No. So, no avidya. Because why he is not getting attached? No klesha, therefore no raga, no avidya, no asmita, no raga, no dvesha, and therefore no clinging to life also. क्लेश नहीं है. अगर क्लेश नहीं है, राग द्वेष नहीं है, तो राग द्वेष की वजह से होने वाले कर्म होंगे. राग द्वेष की वजह से मुझे ये चाहिए, मुझे ये अच्छा लगता है, ऐसा ही चाहिए, वैसा ही चाहिए, इसलिए किसी और को मिला, मुझे नहीं मिला, तो वो जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो सब कॉन्सिक्वेंसेस उनको होंगे, उनको नहीं होते हैं. और इसीलिए वो कर्म उसका कर्म बनेगा. वो रात दिन काम करते हैं. शंकराचार्य ने रात दिन काम किया, लेकिन कोई भी उसके कर्म बने. उन्होंने अपने लिए काम किया नहीं, सृष्टि के लिए काम किया. उन्होंने अपने राग द्वेष के लिए काम नहीं किया था. करेक्ट. इसीलिए ईश्वर इज दैट हु इज नो क्लेश, एंड देयरफॉर क्लेश नहीं है, तो वो जो भी काम करते हैं वो कर्म नहीं कहलाता है, क्योंकि कर्म का फल उसको चिपकता नहीं है. क्यों नहीं चिपकता है. क्योंकि क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट, उसका जो आशय है, जिसके ऊपर कर्म चिपक सकते, उसके ऊपर कर्म रह सकते हैं, ऐसा वो जो सबस्टेटम है, वही ईश्वर के पास नहीं. No klesha, therefore no karma. If no karma, therefore no karma vipaka. कर्म का विपाक भी नहीं रहा. करेक्ट. कर्म का फल भी नहीं है. अगर कर्म का फल ही नहीं बंधा है, तो फल की वजह से जन्म लेना जरूरी है. कर्म का फल ही नहीं बचा है, कोई है ही नहीं कभी. 0 बैलेंस, नो फिक्स्ड डिपॉजिट. तो
उनको ना इंटरेस्ट मिलेगा ना कुछ मिलेगा, सो उनका कोई बैलेंस ही नहीं है, तो नया जन्म होगा ही नहीं. नो क्लेश, therefore no karma, therefore no karma vipaka. Why? Because there is no ashaya. नो It is आशया. aparamrushta. It is beyond all that things. ऐसा जो पुरुष विशेष है, स्पेशल पुरुष जो ईश्वर. है, इज ईश्वरा. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ईश्वरा. एंड इसीलिए भगवत गीता योग शास्त्र है, भगवत गीता भी, करेक्ट. तो योग शास्त्र में योग शास्त्र है तो सेम टू सेम होना चाहिए, है कि नहीं. अभ्यास वैराग्य योग शास्त्र में, भगवत गीता में भी दिया है. एग्जैक्टली यही बात ईश्वर की, कि ईश्वर क्या है, अपरामृष्ट पुरुष विशेष. ये जो शब्द है, एग्जैक्टली यही शब्द भगवत गीता में भी यूज किया गया है इन 15th चैप्टर. इंस्टेड ऑफ विशेष पुरुष, व्हाट इज द वर्ड यूज देयर? 15th chapter of Bhagavad Gita. Anybody? We have spoken about it. Uttama Purusha. Purushottama Adhyaya. 15th chapter. Uttama Purusha. Shrestha Purusha. Not only Purusha, not only pure consciousness. It is Uttama Purusha. Bhagavad Gita, it is Uttama Purusha, but in Yoga Shastra, it is what? Vishesha Purusha. That is what is explained. And so, this Purusha Vishesha, दिस स्पेशल पुरुष, वो जो है वो क्या करता है, और उसके अंदर हमने तो कहा ना कि गुण नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ है उसमें जिसको हम ईश्वर कह सकते हैं. गुण नहीं होते हुए भी उसके कोई कोई खास गुण ऋषि पतंजलि ने एक्सप्लेन किया है. क्या क्या कहा है? सो उनको क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट तो है ही, पर उसमें सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञता का सीड, मीन्स द नॉलेज, द कंप्लीट नॉलेज स्टार्ट्स फ्रॉम दिस ईश्वरा. द ईश्वरा इज बीज, सीड ऑफ ओमनिशिएंट. सर्वज्ञता का वो बीज है, इट इज द सीड ऑफ ऑल नॉलेज. पुरुष सर्वज्ञ, नोज एवरीथिंग. एग्जैक्टली पुरुष विशेष नोज एवरीथिंग. गुण, ज्ञान होना, वो गुण है कि नहीं है? मेरे में ज्ञान है तो वो गुण है, लेकिन वो वाला कौन सा गुण है? सत्व रजस तमस के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली? नहीं. इट इज हाईएस्ट नॉलेज, राइट? सो गुण है लेकिन फिर भी गुण नहीं है. यू अंडरस्टैंड? वेरी स्मार्टली इज पुटिंग इट. ओके. एंड पूर्वेशाम अपि गुरु, he is guiding everybody. करेक्ट. सबसे पहले नॉलेज कहां से आया? शिव. शिवा मीन्स प्योर कॉन्शियसनेस, और शिव को हम ईश्वर मानते हैं. When we talk about Ishvara, then the meaning of Ishvara, general meaning of Ishvara is what? Supreme power. If it wants, it can create. If it does not want, it will not create. Correct? But it is the supreme power. And if it is supreme power, it is omnipotent. कुछ भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है. Omnipotent means सर्वशक्तिमान. Omniscient, सर्वज्ञ. Omnipresent, सब जगह पे हाजिर है. करेक्ट. पुरुष कहाँ नहीं है? पुरुष कहाँ है? In each and everything. Each and everything. Sankhya also believes that Purusha is in everything, everywhere. Sarvatra Hari Darshana, Sarvatra Isha Darshana, Ishavasya Upanishad says the same thing. Yes, it is everywhere. Okay? And काल के द्वारा उसको छेदा जा सकता है. वो हमने क्या बोला था? सच्चिदानंद कुछ कुछ. सत मीन्स व्हाट? एवर एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल. अगर वो एवर एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल है तो कल था, आज नहीं है, आज है लेकिन कल नहीं रहेगा, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है. करेक्ट. काले न अनवच्छेदा. एंड ऐसे पुरुष विशेष को हम कौन से नाम से जानते हैं? तो उसका नाम भी दिया गया है. प्रणव. हाँ, उसका नाम भी दिया गया है. ओके. और उसका नाम है प्रणव. प्रणव मीन्स ओम. और ये ईश्वर प्रणिधान करके हमें टेक्निक दी है, राइट? जैसे अभ्यास एंड वैराग्य की टेक्निक है जिसके द्वारा हम चित्तवृत्ति निरोध कर सकते हैं, वैसे ईश्वर प्रणिधान इज अ टेक्निक, राइट? जिसके द्वारा हम चित्तवृत्ति निरोध कर सकते हैं. तो
ये प्रणव का करेंगे क्या? हाउ टू यूज इट एज अ प्रोसेस. एंड सो टू यूज प्रणव, टू यूज ओंकार एज प्रोसेस, ही हैज गिवन द प्रोसेस ऑफ जप. उसका जप करना है. तत् जप अर्थ भावनम, with अर्थ and bhavana. And so that we can connect to this Omkar, we connect to this Pranava. And who is this Pranava? Yes, Klesha Karma Vipaka Ashaya Paramrushta barabar hai. But it is that eternal sound from which we all came into existence. It is Sat principle, yes. It is conscious principle, yes. It is blissful, yes. It is blissful also. Satchit Anand usme hai hi. Correct? And so, this is what the Ishvara is. ये ईश्वर, ये पुरुष विशेष को करना क्या है? ईश्वर. ये अभी तक जो भी बात की वो ईश्वर की बात की. What about this प्रणिधान? प्रणिधान. What is प्रणिधान? Surrender, surrender. समर्पण. कंप्लीट समर्पण. Surrender. हो जाना, कंप्लीट सरेंडर. भगवान के साथ और एकाकार हो when we जाना. say complete surrender means what? Connect with God. Connection, connection. काया वाचा मन से सरेंडर. तो काया वाचा मनसा सरेंडर मतलब क्या सरेंडर करना है? सी, किसको सरेंडर करना है? जो जिसके साथ हम अल्लाह. कनेक्टेड है वो. हम यूजुअली I means what? When I say I am Brahman. Raksha, so I means what? I is body, अहंकार. my mind, my बुद्धि, my अहंकार. करेक्ट? मेरे I में ये सब आते हैं. तो अगर मैं उसके साथ कनेक्टेड हूं तो मैं पुरुष के साथ, प्योर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हो सकती हूँ क्या? नो. नहीं. इसीलिए क्या कहा है? उसको छोड़ो. गिव अप, सरेंडर, लीव इट मन बुद्धि कंप्लीटली. अहंकार. करेक्ट? मन बुद्धि चित्त अहंकार मतलब काया वाचा मन, वो सही नहीं है. मन बुद्धि चित्त एंड अहंकार जिसके साथ हम, मेरा प्योर कॉन्शियसनेस जुड़ा हुआ है, उसको वहां से छोड़ करके, उसको वहां से डिस्कनेक्ट करके, वहां पे उसका डिवोर्स करके उसको किसके साथ जोड़ना है? आइडेंटिफाई करना है. इट इज आइडेंटिफिकेशन, इट इज कनेक्शन विथ पुरुष विशेष. Yeah. That is what is the meaning of pranidhan. Pranidhan means complete identification, complete connection with ईश्वरा. And so मुझे completely, fully 100% ईश्वर के साथ कनेक्शन होना, करना है. तो मेरा कनेक्शन जहां जहां है वहां से तो तोड़ना पड़ेगा ना. So I should disidentify, disconnect with physical world or physical aspect or gross aspect or prakriti aspect in me. That is mana, buddhi, chitta and ahankar. That is what Ishvara Pranidhan is. और ये प्रणिधान, disconnecting with the world, disconnecting from the world and connecting with the Purusha Vishesha. How can I do? By रात दिन जप करते हुए. जो कंटिन्यूअसली आप बोलते हो, जो कंटिन्यूअसली आप सोचते हो, आप उसके साथ कनेक्ट होते हो. इसीलिए जप शब्द यूज किया. जप मीन्स व्हाट? कंटिन्यूअस कनेक्शन. रात दिन यू कनेक्ट, यू थिंक, यू बी विद Ishvara principle. And so slowly you get connected to Ishvara. And the moment you connect to Ishvara, Ishvara is Purusha Vishesha. So you come here to Purusha, and so you understand what Purusha is, what you are, what we are actually. And that will help me to come out of all other vrittis when I am connected with Om. मेरे चित्त में, मेरे मन में, मेरे हर एक बात में सिर्फ ओम 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 छाया हुआ है. तो और कुछ आया है, और कुछ वृत्ति हो सकती है, यू नो. इसलिए हम लोग ने बहुत सुंदर वाक्य कहा था, विच कम्स इन वन ऑफ आवर स्तोत्र. मैयार पिता, भगवान जी ने कहा है, मैयार पिता चित्त वृत्ति. तुम्हारी चित्त की वृत्ति है वो मुझे अर्पण कर दो. मतलब मेरे चित्त में किस चीज की वृत्ति होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की. यही गोपियों ने किया है. उन्होंने पूरा, उनके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही छवि, एक ही बंदा, एक ही कंसेप्ट, ईश्वर. सो देखे भी ईश्वर, वो खाए ईश्वर, वो पिए ईश्वर, वो सोए ईश्वर. करेक्ट? हाँ. So when you become Ishwaramaya, that's why we have given this example of Ram Nami Sampradaya.
उस वक्त कहा था, क्योंकि उस वक्त मोदी जी वो गए हुए थे, और ऐसे है वो पूरे शरीर पे राम नाम राम नाम राम नाम लिखवाते हैं। गूगल इट, अभी अभी थोड़े दिन पहले उसके बारे में आया था। ओके, बहुत सारे लोग पहले लिखवाते थे, क्यों? क्योंकि आज से मैं राम का, राम की, या तो ईश्वर की, राइट? हाँ, सो दैट इज व्हाट कंप्लीट कनेक्शन, oneness, union with Ishvara Yeah. is Ishvara Pranidhan. And so Rishi Patanjali says that this Ishvara is your Guru. And then very beautifully we have done many things about Guru and kaun kya hai, or difference between teachers. And that was all to sajao our understanding of Ishvara. And so Ishvara is that Ekatattva, Ekamkar, Sat Naam, eternal Nama, correct? Eternal word it is. कर्ता पूरक पहले से जो है, निर्वैर, निर्गुण, निर्वैर, अकाल मूरत। अकाल मूरत मतलब कोई भी काल, कोई भी समय उसको छेदन नहीं कर सकता है। अजुनी से बंद, वो पूरा हम लोग ने तब किया था, राइट? एंड सो when we are talking about Ishvara and Ishvara Pranidhan, Rishi Patanjali talks about Ishvara who is क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, परामृष्ट, ऐसा जो पुरुष विशेष है, नो क्लेश, नो कर्म विपाक, that concept is Ishvara. It is known as Purusha Vishesha, which is there within all of us. Aisa Uttama Purusha. And so how you can connect? You can connect with that Ishvara, because वो Ishvara का नाम प्रणाम भी है, connotation. You can know it through Pranava, through Om. And so how can you connect with Om? So you can do japa of Om. Japa of Japa. Om, it's not only Vaikhari से Om 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 बोलना, वो भी है, that is at a gross level. But धीरे धीरे हमारे मन में, हमारे चित्त में, हमारे सांसों सांस में, वी हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ अर्जुन, जिसके सांसों सांस में कृष्ण थे, एग्जैक्टली लाइक दैट, दैट सोहम, दैट पावरफुल ओम आई एम, दैट पावरफुल ईश्वर आई एम, दैट पावरफुल प्योर कॉन्शियसनेस, सुप्रीम पावर आई एम, when that becomes my existence, and then there is no other vritti, only vritti of Purusha. And that's how I connect. And so me becomes Purusha. I attain that Kaivalya oneness with pure conscious. And lo, all the vrittis ka nirodha. We are in Samadhi. We attain Kaivalya. And that is what, in nutshell, Rishi Patanjali has spoken about Ishvara Pranidhana. आज मैंने गाना क्यों नहीं लिया? क्योंकि एग्जाम में गाना नहीं पूछ सकती हूँ, लेकिन भाई पता नहीं, हाँ मेरे मूड में आए तो मैं पूछू भी। Thorough with the concept of Ishvara and Ishvara Pranidhan. So Rishi Patanjali says to come out of all the chitta vritti, that is the meaning of yoga, correct? So in Samadhi Pada, Rishi Patanjali, the first chapter, Rishi Patanjali explains what is Samadhi and how to reach Samadhi in nutshell. And then in second chapter, he gives different path through which we can reach the state of Samadhi, correct? Sadhana Pad. So in Sadhana Pad, he has given Kriya Yoga and Ashtanga Yoga. So when we are practicing Abhyasa and Vairagya, when we are practicing Ishvara Pranidhana, slowly we are coming out of vrittis and kleshas, etc. And our chitta is becoming purified, right? हमारा चित्त शुद्ध हो रहा है कि नहीं, कि अभी भी मूड ही है? नहीं, मूड से क्षिप्त हुआ वो तो बहुत पहले हो गया, क्षिप्त से विक्षिप्त हुआ, थोड़ा थोड़ा एकाग्र, यस, और थोड़ा थोड़ा एकाग्र से ज्यादा एकाग्र होने लगा, करेक्ट? एंड जब एकाग्र होने लगा तब स्पार्क दिखने लगा, जब हम एकाग्र होने लगे तो सब दिमाग की बत्ती जलने लगे, हाँ करेक्ट, यूरेका होने लगा,
कि अरे हाँ समझ में आया, हाँ हाँ ये समझ में आया वगैरह, करेक्ट। हाँ, सो दिस आर हमारा मन कैपेबल हुआ थोड़ा। क्यों कैपेबल हुआ? बिकॉज प्यूरिफाई हुआ, वृत्ति कम हुई, कचरा कम हुआ, मल कम हुआ, आवरण थोड़ा थिन हुआ, करेक्ट। 10 15 25 50 आवरण थे, उसमें से 5 6 हट गए तो थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने लगा, करेक्ट, आवरण कम होने लगे। यस, सो दिस इज व्हाट कैपेसिटी ऑफ अवर माइंड, करेक्ट। हमारे माइंड की पोटेंशियलिटी बेटर हुई, हमारे माइंड की शक्तियां बढ़ने लगी, हमारा माइंड थोड़ा शुद्ध होने लगा। एंड सो कैन वी कॉल इट छोटी छोटी सिद्धि, करेक्ट। And so Rishi Patanjali has given in 3rd chapter the siddhis. What are the siddhis? Siddhis are that capacities of mind which we attain when we do abhyasa vairagya and Ishvara pranidhan, or when we do tapasvadhyay, or we do other things like what? Va techniques, करेक्ट। सो वेन बाय एनी हुकर कृपा मैत्री करुणा, कुछ भी प्रयत्न, कुछ भी साधना करते हुए हम चित्त को शुद्ध करते जाएंगे, प्यूरिफाई करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली चित्त विल स्टार्ट शोइंग कैपेसिटी, करेक्ट। मोस्ट ऑफ अस नाउ आर एबल टू सिट इन पद्मासन और इन एनी अदर पोस्चर much better than earlier, much better than earlier. We all are becoming capable of concentrating for hours together. 1 घंटे से ज्यादा मतलब hours together हो जाता है, राइट? 3 घंटा बैठते हैं बॉस, 3.5 4 घंटा भी बैठ लेते हैं, करेक्ट। सी इट इज कैपेसिटी, राइट? इट इज कैपेसिटी और नॉट? इट इज कैपेसिटी। हमारा ग्रास्पिंग पावर बढ़ा है कि नहीं? हम पहले से जल्दी थी थोड़ा माफ करने लगे हैं कि नहीं? पहले से थोड़े गुनाह कम करने लगे हैं कि नहीं? हाँ, गुनाह भी करते हैं, सब लोग करते हैं। तुम लोग कोई भगवान पुरुष विशेष नहीं बने या पुरुष भी नहीं बने, करेक्ट, लेकिन पहले से कम हुए हैं। अगर गलती हो जाती है तो रियलाइज होता है, पहले तो रियलाइज ही नहीं होता था। कोई रियलाइज कराने जाते बताता था हमें हमारी गलतियां तो बोले हटा सावन की गदा, चल भाग। मानने के लिए तैयार नहीं होते थे कि ये हमारी गलती है, लेकिन अभी किसी को बताना नहीं पड़ता है, हमें अपने आप को, करेक्ट। सो ऑल दिस आर little siddhis. Rishi Patanjali says not only little siddhis. With this abhyas vairagya and with this Ishvara pranidhana, you start getting better, higher siddhis. And so he listed all that siddhis in the 3rd chapter. To be able to concentrate, हमारे भटकते हुए मन को कहीं एक जगह पे ला करके बिठा सकते 5 मिनट, वो हमारी कैपेसिटी है कि नहीं? सो धारणा इज वन ऑफ द सिद्धीज, वन ऑफ द रिजल्ट्स, राइट? इसलिए 2nd चैप्टर में कहां तक ऋषि पतंजलि ने बताया? 2nd चैप्टर में ऋषि पतंजलि ने प्रत्याहार तक बताया, राइट? यम नियम आसन प्राणायाम, अष्टांग योग में से ये शुरू के ये 5 यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, हाँ ये 5 हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या है? प्राणायाम का रिजल्ट है धारणासु योग्यता मनस, करेक्ट, धारणा की कैपेसिटी। सो धारणा इज वन ऑफ द रिजल्ट, धारणा इज वन ऑफ द छोटा सा सिद्धि, बट इट इज सिद्धि। एंड धारणा बिकम्स अवर ध्यान, राइट? दैट इज व्हाट द डेफिनेशन इज। धारणा मतलब देशबंध चित्तस्य धारणा। अरे वाह, मेरे को तो याद रह गया, करेक्ट। हाँ, चित्तस्य देशबंध इज धारणा। हमारे मन का कोई भी एक प्लेस पे, एक ऑब्जेक्ट पे, एक जगह पे फिक्स हो जाना, एकाग्र हो जाना इस धारणा। और वो एकाग्रता लंबी देर तक रहना, तत्र जहां पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं वही जगह पे, वही ऑब्जेक्ट पे एकतान हो जाना, एकतानता इस ध्यान। प्रत्यय मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, उसी पे हमारा ध्यान एकाकार हो जाना इस ध्यान। एंड दैट ध्यान वी बिकम सो एंग्रॉस्ड इन दैट ध्यान कि मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं ये ऑब्जेक्ट पे ध्यान कर रहा हूं, ये सब कुछ चला जाए और सिर्फ ध्यान रहे, जस्ट एंग्रॉसमेंट ऑन
what, how, who is doing, nothing is there. Just pure awareness रहता है. इसलिए सिर्फ निर्भास मात्र, अर्थ मात्र निर्भासम इट स्टेज. नो अदर रूप. मेरा भी फिजिकल नहीं, मैं कर रहा हूं, मेरा अहंकार, मेरा चित्त कुछ भी नहीं रह करके जस्ट प्योर अवेयरनेस, दैट इज व्हाट इज समाधि. एंड सो इसलिए ऋषि पतंजलि ने समाधि की क्या व्याख्या दी है इसमें? तदेवार्थ मात्र तद एव अर्थ मात्र, तद एव अर्थ मात्र निर्वासम स्वरूप शून्यमेव स्वरूप समाधि। शून्यम इव. स्व का रूप भी नहीं बचा, कोई भी वो नहीं रहा. इज समाधि. किसान कर 40 एक मिनट आप एक is samadhi, correct? Yes. And so is samadhi one of the siddhi? One of the siddhi Yes. only? Yes, Akash? ध्यान The highest siddhi, ma'am. Highest siddhi. Why it is highest siddhi? क्योंकि वो जो highest level का जो समाधि, अभी तो हम लोग ने समाधि वगैरह थोड़े ही पहले किया था, थोड़े दिन पहले, तो वी रिमेम्बर कि वो वाली समाधि, मतलब समाधि में भी स्टेजेस है, राइट? सविचारा से लेकर के निर्विचारा तक, सवितर्क से लेकर के निर्वितर्क तक. सो व्हेन वी रीच टू निर्वितर्क, निर्विचार समाधि, नो विचार एट ऑल, वो लेवल की हाईएस्ट जो समाधि तक हम पहुंचते हैं, there because there is nothing else, and so we realize ourselves, we get established into our Satchit Ananda Avastha, and that is what the Kaivalya is, correct? And so समाधि तक का जो भी लेवल है उसको क्या कहते हैं? ये सारे जो है वो, दिस ऑल आर नोन एज सिद्धीज और विभूतिज, स्पेशल कैपेसिटीज, स्पेशल पावर्स, राइट? हम लोग ने बहुत सारे मिस्टिक के वगैरह दिया है, कौन से अनिमा, गरिमा, महिमा वगैरह वो किया है. प्लीज फॉर ऑल दैट थिंग्स गो थ्रू नोट्स, ओके? अगर उसके जो भी है वो, या Rishi Patanjali then says that when we sit or when we are trying, when we are practicing dharana, dhyan and samadhi, dharana, dhyan, samadhi हमें practice करना है कि नहीं करना है? अष्टांग योग है? If it is Ashtanga Yoga, it's a process. It is sadhana. Correct? सीधे ही निर्विचार तक पहुंचेंगे थोड़े. निर्विचार तक पहुंचने के लिए सविचार से शुरू करते हैं, तो धारणा ध्यान समाधि, धारणा ध्यान समाधि प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, राइट? सो इट इज रिजल्ट एज वेल एज पार्ट ऑफ प्रैक्टिस, करेक्ट? इसलिए उसको अंतरंग कहा है, करेक्ट? एंड दैट्स व्हाट ऋषि पतंजलि सेज दैट इन समाधि पाठ, कि दे आर अंतरंग, दे आर वेरी सटल, एट द सेम टाइम दे आर ग्रॉस ऑल्सो, दे आर बहिरंग ऑल्सो. Correct? And then Rishi Patanjali says that when we are practicing all these things, we start getting different other capacities. And in other capacities, Rishi Patanjali has spoken about different parinama on our chitta. Okay? And so, all the results which we are getting, whether we are getting the result of asana, ahimsa, satya, asteya, aparigraha, brahmacharya, shaucha, santosha, tapas, svadhyaya, ishwara pranayam, वो सबके result है. All that results are capacities. All the results are छोटा-छोटा siddhis. And then Rishi Patanjali has given the result of asana, result of pranayama, result of pratyahara. And what is the result of dharana, dhyan, samadhi? So Rishi Patanjali says, dharana only becomes dhyana, dhyan only becomes samadhi. Actually, though there are 3 stages, but all the 3 comes together always. इसीलिए उन्होंने एक पर्टिकुलर नाम दिया उसका. क्या नाम दिया उसका? संयम. Sanyama. And that's why we always say what? Dharana plus dhyana plus samadhi is equal to sanyama. And when we apply sanyama, means we start with dharana, which converts into dhyana, which gets culminated into samadhi. That leads to different level of capacities. Now, this different level of capacities, different powers are necessary for us. Will everybody, every sadhak will get it? He only selected one will get it?
Hmm? Every. Everyone. Every. Everyone will get everything? not compulsory, not necessary. तो कौन सा उसको मिलेगा? उसमें कोई हायरार्की है क्या? इसको यही मिलेगा, उसको ये मिलेगा, कि उसने ये किया है, वो किया है? नहीं. Whatever way you are practicing and whatever you need, that kind of capacities you will come. Why do we need any capacities? क्योंकि ये सारी कैपेसिटीज की वजह से, ये सिद्धि की वजह से तो हम पागल हो जाते हैं ना, अटक जाते हैं ना. हम अपने आप को MBA समझने लगते हैं ना, कि मैंने बद्दू आवड़े छे हवे हैं, अभी मेरे को प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है. एंड देन फिर मुंह की खाते हैं, देन रियलाइज करते हैं. ओके, सिद्धियों की वजह से बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग, करेक्ट, उनको लोग भगवान समझने लगते हैं, क्योंकि सचमुच में देवर हैविंग पावर. लोग तो उनको भगवान समझते हैं, फिर क्या प्रॉब्लम आ जाती है, वो खुद को भगवान समझने लगते हैं, राइट. एंड देन दैट इज द टाइम, वो स्वर्ग में या तो उसमें विराजमान होने के बदले में जेल में विराजमान होना पड़ता है, राइट. क्यों? why? Because this samadhi, if you have not taken it right, this siddhis are what? Stepping stones. They are steps. They are ladders, which is taking us higher. If we start taking the steps, if we start taking ladder, is the ultimate stage, then वहीं पे अटक जाएंगे और वहीं पे टिके रहते हैं. क्या ये तो बहुत हाइट पे है, वो हाइट पे ऐसे टिके नहीं रह सकते, लटकते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं नीचे गिरने ही वाले हैं ना, और 99 के सांप की तरह बहुत नीचे आ जाते हैं, राइट. That's why, and that's why does Rishi Patanjali tells us कि ध्यान रख भाई, correct? Yes, he says this, that siddhis are important. It comes on your path. It is like different stations, right? Different stages when you are going higher. And when you are going higher at a higher altitude, so straight away at a very high altitude, you cannot reach. In between, you have to become what? वो क्या बोलते हैं? Acclimatize yourself, correct? At a higher level पे अपने आप को टिकाने के लिए acclimatize करना पड़ता है, right? And so to acclimatize, different stages comes. ये stage पे थोड़े टिक गए, स्थिर हो गए, फिर उसके बाद में हायर, और वहां पे जो पावर है, वहां पे जो कैपेसिटी, जो पोटेंसी हमें मिलती है, दैट वी कैन यूज इन द हायर लेवल. सो द पाथ बिकम्स इजियर, करेक्ट, फॉर अस. Easily we can climb higher, easily we can manage with that different environment, and thus siddhis are necessary. Siddhis are coming on each and every sadhak's path, but all the in the same sequences will come, not necessary. All the stations will come, not necessary. Why? What path you choose, what train you choose. स्लो ट्रेन है, बापू गाड़ी है, तो सारे स्टेशन आएंगे और जन्मों के बाद पहुंचेंगे. इवन दो यू हैव स्टार्टेड द जर्नी. अगर एक्सप्रेस ट्रेन है तो, वंदे भारत है तो, फ्लाइट है तो, करेक्ट, अकॉर्डिंग टू दैट यू मे स्किप फ्यू कैपेसिटीज एंड यू मे गेट हायर कैपेसिटीज फास्टर. Everybody will reach to the final stage, highest stage. Yes, everybody will reach to the highest stage. Do we know examples in our life who were having all these powers? Yes, many mistakes. Ramakrishna Paramahans, Vivekananda, many other names, all that names we have discussed. So they have gone through this. And so Rishi Patanjali has talked about, and so when we were talking about the siddhis, so we spoke about the Hanumanji, who were having, Ashtasiddhi, not only having, but he can give it to others. He can help others to attain all these siddhis. So these siddhis are how many? In general, when we speak about Hanumanji, Ashtasiddhi. वो अष्टसिद्धि कौन सी है? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व and वशत्व. Different kind of, these are the siddhis are there. And in all these different siddhis, they are perfections, accomplishments.
their successes, unusual skill, unusual powers. They are different kind of acquisitions of supernatural power or extraordinary power. So they are known as Siddhis. Or when we are talking about Vibhutis, it is Aishwarya. When we are talking about Vibhuti, it is the higher attributes given to the Ishwara or God or supreme power. So we start getting all these qualities in us, capacities in us. And so, Rishi Patanjali has listed them. Yes, Rishi Patanjali has listed them. And he said that we get Atita Anagata Jnana Atita ka, जो पास्ट है वो, अनागत जो फ्यूचर है, आगत अभी तक आया नहीं है, अनागत जो है उसका भी हमें ज्ञान होने लगता है कि अब क्या होगा. Okay, that we start getting the knowledge. We start getting the knowledge of sarva bhuta rita jnanam. हर एक भूत मात्रा, भूत मतलब कौन? पंच महाभूत. एवरीथिंग, भूत मात्रा मीन्स एवरीथिंग. उसका इटर्नल प्रिंसिपल क्या है, उसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है, उसका ऋत तत्व क्या है, हाउ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, वी कम टू नो. दैट्स व्हाई बड़े बड़े लोग या योगी लोग नोज अबाउट द होल यूनिवर्स. दे नो एवरीथिंग. यस, सर्वभूत ऋत ज्ञानम. वी डू गेट पूर्व जाति ज्ञानम, लास्ट जाति का ज्ञान. वी गेट पर चित्त ज्ञानम, दूसरे के चित्त का ज्ञान. क्यों? खुद के चित्त को पहचाना. मेरा चित्त और दूसरे का चित्त सेम है? चित्त सेम है, उसके अंदर सत्व रजस तमस का प्रपोर्शन अलग अलग है. बिकॉज चित्त इज यूनिवर्सल. चित्त, एवरीथिंग इज यूनिवर्सल. प्रकृति इज यूनिवर्सल. Correct? Or why they are looking different? Why this different prakriti is there? Because of different sattva rajas tamas. लेकिन उसका component, natural component तो same ही है, substratum same ही है. इसलिए we start knowing other चित्त. दूसरे के चित्त में क्या चल रहा है, क्या chaos है, क्या प्लस है, क्या माइनस है, क्या पॉलिटिक्स चल रहा है, वो सब कुछ योगी को पता चलता है. Okay, kaya rupa sanyamat antar dhyanam. If we are concentrating on the body, kaya rupa, we get the capacity of antar dhyana, paranta jnana, highest level का knowledge. कौन सा knowledge? मेरा death या तो मेरा complete end कब होगा, या किसी और का complete end कब होगा, we come to know about that. We get the knowledge of maitri, we get knowledge of bala या तो strength, we get, okay, we get strength of Hasti Balani, the power of elephant. ये वाला हमारे उसमें है शायद, या तो जो पतंजलि योग सूत्र का चार्ट है उसमें है. हाँ, वेल मैं ये सब डिटेल में पूछने वाली नहीं हूँ कि कौन सी सिद्धि है. सो डू नॉट वरी, बट क्योंकि ये सिद्धि का टॉपिक है तो आई थॉट आई विल गो थ्रू इट. देन भुवन ज्ञान, तारा व्यूह ज्ञान, देन काया, हमारी बॉडी के अंदर में कौन सी सिस्टम है उसका ज्ञान. देन वी गेट पावर ओवर शुद्ध पिपासा, भूख एंड प्यास पे भी कंट्रोल वी गेट. ओके, एंड देन वी गेट द पावर ऑफ बीइंग स्टेडी, स्थैर्य. वी गेट पावर ऑफ सिद्ध दर्शना, हायर रियलिटीज जो है या तो पहुंचे हुए जो सिद्ध लोग हैं उनको मिलने का चांस मिलता है. एंड ऑल दिस पावर्स लीड टू दैट लेवल कि हम लोग कादव कचरा उससे भी उड़ करके, उससे परे होकर के हम जा सकते हैं. वी कैन कंट्रोल ऑल अवर प्राणस, प्राण, अपान, व्यान, उदान एंड समान, वो सारे प्राणों के ऊपर जय भी हमें मिलता है. एंड देन आकाशगमन वगैरह वगैरह करते हुए फाइनली वी रीच टू दैट कैपेसिटी वेयर मनोजय, मन का जय, mastery over mind, because of mastery over indriya. Because we have complete control on all the senses, and all the senses includes mind, and so we get manojava, control over the mind. Control over the mind matlab control over the
Chittavritti, vrittis. When we say that I have control, when there is no chahel-pehel, no up and down, no modifications, no fluctuations, right? So अगर मेरे मन पे मेरा पूरा कंट्रोल है, पूरा पावर है, पूरा निग्रह है, जय है, इसका मतलब क्या है? मेरे मन में वृत्तियां नहीं है। अगर मन में, चित्त में वृत्तियां नहीं है तो कौन सा स्टेज आया? समाधि अवस्था। करेक्ट? सो मनो इंद्रिय जय लीड्स टू मनोजय लीड्स टू पुरुष ज्ञान। एंड सो सारे दोष, हमारे दोष कौन से हैं? क्लेश हमारे दोष है, राइट? कचरा है वो हमारा, मल है, आवरण है। हाँ, सो सारे दोष मतलब क्लेश, देयरफॉर वृत्तियां एंड देयरफॉर संस्कारा क्षय हो गए। एंड सो वी रीच टू व्हाट? वी रीच टू कैवल्यम। Highest level of samadhi avastha we reach. That's why it is said that samadhi is the highest siddhi. When we reach to that nirvichara samadhi, we reach kaivalyam. So this is about all our siddhis. Now when we say that we reach to kaivalya or we reach to this highest siddhi, how? What way? What is this samadhi? What is the definition of samadhi? What is the definition of samadhi? आदि व्याधि उपाधि रहित अवस्था। General meaning is, or general definition is, adi vyadi upadhi rahita avastha is, adi vyadi upadhi rahit avastha is samadhi avastha. तो आदि व्याधि उपाधि कोई टाइप का टेंशन, वरीज, अप एंड डाउन, फ्लक्चुएशंस, चेंजेस रहा नहीं, तो वो समाधि। तो क्या नहीं रहा? फ्लक्चुएशंस, मॉडिफिकेशन नहीं रहा, तो क्या नहीं रहा? वृत्तिस नहीं रही। अगर वृत्तिस नहीं रही तो क्लेशा होंगे, अगर क्लेशा है तो वृत्ति रहेगी। करेक्ट? तो क्लेशा नहीं रहा। अगर वृत्ति नहीं रही है तो कोई ना कोई संस्कार होगा क्या? वो भी नहीं है। करेक्ट? दैट इज व्हाट इज समाधि अवस्था। तो संप्रज्ञात समाधि एंड दिस दोष रहित समाधि which leads to kaivalya is the same samadhi? No. संप्रज्ञात समाधि या सविचार समाधि is the first day of advanced, first day of diploma. First, हाँ, क्या बोले? first level of samadhi, ma'am. First level of level. samadhi, correct? Starting day of diploma. And nirvichara samadhi is advanced diploma ka last day today. Where all the clarifications are there and we reach finally kaivalya. Well, हमारा kaivalya दो संडे बाद आएगा, correct? मुक्ति, complete freedom. हान उपाय, राइट? हान मतलब मुक्ति, वो हमारा तब आएगा। अरे वाह, अभी इसके बाद और कुछ पढ़ना नहीं है। अगर किसी को एमए करना है वगैरह अलग बात है, पीएचडी तक, क्योंकि हमारे एडवांस डिप्लोमा का तो पर्पस ही वही है, आपको फेविकॉल के साथ चिपका के रखने का, डिपार्टमेंट से जाने नहीं देने का। एनीवे, करेक्ट? एंड सो when we talk about samadhi, that samadhi word in itself has many stages. And so, what are these stages? Is dharana very basic stage of samadhi? करेक्ट? अगर धारणा नहीं है तो ध्यान नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा तो समाधि की अवस्था नहीं है। करेक्ट? इट इज। एंड सो धारणा में हम करते क्या है? धारणा में हम करते क्या है? What do we do in dharana? We try to concentrate on an object. On an object or on a particular place. ये particular देश शब्द क्यों रखा है? ऑब्जेक्ट भी है, जगह भी है। क्यों? क्योंकि we try to concentrate, center of eyebrows, आज्ञा चक्र, या तो हार्ट चक्र, अनाहत चक्र। बिहार स्कूल इज वेरी फेमस, इट हैज अ वेरी ब्यूटीफुल बुक, धारणा प्रैक्टिसेस। क्या है धारणा प्रैक्टिसेस करके ही है, उसमें बहुत सारी चिदाकाश धारणा, देन हृदय आकाश धारणा, हृदय का आकाश, हृदय का जो स्पेस है उस पे धारणा। एंड दे हैव गिवन अ सिस्टम, अ प्रोसेस, हाउ कैन यू डू दिस कंसंट्रेशन, द प्रैक्टिसेस इज गिवन।
And Bihar school always says that you cannot do, I mean, that is what Rishi Patanjali says, you cannot do samadhi. You can always do dharana. Dharana only will become dhyan and dhyan will become samadhi. हम समाधि की प्रैक्टिस कभी नहीं करते. हम प्रैक्टिस किस चीज की करते हैं? हम धारणा की प्रैक्टिस करते हैं. धारणा ध्यान बन जाता है और ध्यान ही समाधि बन जाता है फिर. करेक्ट. इसलिए प्रैक्टिस हम धारणा के करते हैं. इसलिए ऋषि पतंजलि ने भी कहा संयम. बराबर. That is what he mentioned. And so, when we are talking about samadhi, so samadhi अवस्था कब शुरू होगी? कब शुरू होती है? According to ऋषि पतंजलि योग सूत्र, क्या करने से समाधि अवस्था आएगी? समाधि अवस्था मतलब चित्तवृत्ति निरोधावस्था, हाँ या ना? तो चित्तवृत्ति निरोधावस्था कैसे आएगी? क्या करने से आएगी? निरोधा कैसे होगा? निरोधा कैसे होगा? अभ्यास एंड वैराग्य से. एंड सो अभ्यास वैराग्य के बाद में, अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है, वो समझाने के बाद में ऋषि पतंजलि ने समाधि अवस्था तक पहुंचते वो समझाया है कि हाँ हम लोग अभ्यास वैराग्य के बाद समाधि अवस्था तक पहुंचे. समझाया है फर्स्ट चैप्टर में. हाँ, हम लोग ने ये सूत्र किए थे. फर्स्ट चैप्टर में समझाया है कि अभ्यास करने से, वैराग्य करने से हम लोग कहाँ पे पहुंचेंगे? उन्होंने कहा है सवितर्क समापत्ति, निर्वितर्क समापत्ति एंड सविचार निर्विचार सूक्ष्म विषय व्याख्याता एंड ता एव सबीज समाधि. एंड देन व्हेन वी रीच टू निर्विचार, then we get adhyatma prasada, and when we reach to this adhyatma prasada, which is nothing else but ritambara prajna, this ritambara prajna is nothing like श्रुता and अनुमान के द्वारा जो ज्ञान है उससे परे का ज्ञान, उसका हायर ज्ञान, क्योंकि ये एक्सपीरियंशियल नॉलेज है. राइट. एंड लेकिन वहां पे नहीं अटक करके और आगे जाते तो हम निर्विषय निर्विचार समाधि तक और निर्बीज समाधि तक पहुंचते हैं. Shall we repeat in short once again? Yes. And so Rishi Patanjali says that when we practice abhyas and vairagya, or when we practice Ishvara Pranidhan, when we practice abhyas and vairagya, उसके बाद में वितर्क विचार आनंद अस्मिता अनुगमत संप्रज्ञात, that Rishi Patanjali has mentioned. When we are practicing abhyas and vairagya, we reach to sampragyata samadhi. What is sampragyata samadhi? Sampragyata samadhi is with pragya, with knowledge. With knowledge. Why it is with knowledge? Because we are having thoughts. Thoughts about what? Thought about the object we selected to concentrate on, to focus on. And so when we are focusing on that particular object, we are having some kind of reasoning about it. Okay? What kind of reasoning? सवितर्क सविचारा. उसका नोट्स मैंने आपको भेजा है ना? मेरे तो नोट्स गड़बड़ हो गई. मैम एक लास्ट आपने नोट्स नहीं भेजा है. हाँ. We are getting some pragyata. हाँ, I have given the notes. सेम डे को मैंने भेजा था. मैंने कहा था ना कि मैं पूरा समझाई थी, तो उसी दिन मैंने भेज दिया. One second, I'll give you. सो मैंने समाधि का है ना, वो भी डेफिनेशन दिया था. When the five senses of perception together with the mind, when all of them are stressed, हमारी ज्ञानेंद्रिया एंड हमारा मन एकदम आराम कर रहा है, विदाउट एनी वृत्ति, वो लेवल पे पहुंचता है. जब हमारा इंटेलेक्ट भी शांत हो जाता है, हमारे सेजिस ऋषि मुनि ने कहा है
इट इज समाधि अवस्था। एंड ये वाली समाधि अवस्था हमें कैवल्य तक लेके जाए। ये वाली समाधि अवस्था कैसे आती है? धारणा ध्यान समाधि। तो प्रत्याहार करते हैं तो धारणा पे पहुंचेंगे। सो 12 राउंड्स ऑफ प्राणायाम लीड्स टू प्रत्याहार, 12 राउंड्स ऑफ pratyahar leads to one dharana, and 12 rounds of dharana leads to dhyan. 12 rounds of pranayam leads to one pratyahar, 12 rounds of pratyahar leads to one dharana, 12 rounds of dharana leads to one dhyana, and 12 rounds of dhyana leads to samadhi avastha. And so there we get the Purusha Khyati, knowledge about Purusha. Guna Vaitrushna, complete Vairagya, comes when we get the glimpses of pure consciousness, Purusha. And so Rishi Patanjali says, yeah, everyone look at me right now, don't look in the notes. You will get more confused. Okay. अभ्यासा इस दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार आसेवित दृढ़ भूमि, ऐसा अभ्यास करेंगे। सिर्फ अभ्यास करना है कि अभ्यास एवं वैराग्य दोनों का है साथ में? दोनों का है। सो वैराग्य करेंगे तो वैराग्य कौन सा करेंगे? सीधा वशीकार वैराग्य करेंगे? नहीं, यतमान, देन व्यतिरेक, देन एकेंद्रिय, and then Vashikara Vairagya comes. What is Vashikara Vairagya? According to Rishi Patanjali, Vashikara Vairagya means Drashta and Anushravika, जो मैंने देखा है या तो जिसके बारे में मैंने सिर्फ सुना है, उसके भी मेरी जो इच्छा है, तृष्णा है, वो भी चली गई। वो कैसे इच्छा चली जाएगी? मैंने देखा है, ओहो सब लोग अमेरिका, मैंने सुना है, ओहो अमेरिका में कितना मजा करते हैं, बट नाउ रियलाइज हुआ बात हाल बहुत बुरा है। सब लोग भाग भाग करके कहा अरब कंट्रीज जा रहे थे, दुबई जा रहे थे कि वो वहां टैक्स नहीं है, टैक्स नहीं है, लेकिन अभी हाल बहुत बुरा है। अभी किसी को बोलो जा 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 दुबई, जाने के लिए तैयार करेंगे। मेरा एक फ्रेंड वहां पे फंसा हुआ था, भाई जल्दी निकालो यहाँ से, भाग भाग करके वापस आया। अरे मजे करना वहां पे। हाँ, अभी वहां पे जाने की इच्छा है किसी को? नहीं। क्यों नहीं है? पहले थी, जो लोगों को थी उन लोगों को अब है नहीं है। क्यों नहीं है? When they realize the futility of it, उनको नहीं है। या तो जो वहां गए हैं और बहुत भुगता है, अभी उनको वापस आना है। उनको लग रहा है कि भाई यार तुम लोग को तो राजाशाही से जी रहे हो, नौकर है, चाकर है, ये भी है, तुम्हारे यहाँ अभी भी पेट्रोल मिलता है, तुम्हारे अभी भी इतना कोई जॉब में प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, जॉब चल रही है, तो बिजनेस भी बहुत सारे हैं। उनको लग रहा है कि भाई ये फ्यूटाइल है। कब पता चला? पहले तो बहुत ही अच्छा लगता था, या तो भुगता एंड दे रियलाइज द रियलिटी। सो इफ वी गो थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ वॉट एवर डिजायर्स वी आर हैविंग, वी रियलाइज ये तो तकलीफ ही देती है। सो आइदर भुगत लेने के बाद, और वी रियलाइज दैट इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी, करेक्ट? And so we come out through knowledge, we come out of all my desires, and then my mind is now capable। नहीं जाना है अमेरिका मुझे, अभी तो मुझे देखने के लिए भी नहीं जाने का मन है। पहले ऐसे लगता था घूम के आएंगे एक आध दफे, अभी वो भी मन नहीं है। क्योंकि अभी हमारे यहाँ कोई अमेरिका से आए हुए थे ना, तो उन्होंने बोला हाँ आपके यहाँ इतने बड़े बड़े बिल्डिंग है। हमारे छोटे बच्चे थे, बोले हमारे यहाँ इतने बड़े बिल्डिंग ही नहीं। दे वर सो एक्साइटेड टू ट्रैवल इन द लिफ्ट। अभी हमारे तो ऐसे हेरे गेरे छोटे छोटे बिल्डिंग में भी लिफ्ट है, राइट? उनके वहां 2 माले से ज्यादा घर नहीं है ना, ज्यादातर मेन सिटीज की बात अलग है, राइट? करेक्ट? सो लाइक दैट, whosoever come out of that experience, they are not. Now when I realize the futility of that, having no desire, so मेरी भी, हम सब की भी दृष्टा देखी हुई बात से जो डिजायर उत्पन्न हुई है, या तो सिर्फ सुनी हुई बात से जो डिजायर हुई है, वो सारी खत्म हो जाती है, करेक्ट? एंड वो जब खत्म होगी, उसके बाद में गुणा वैतृष्णा, पूरी प्रकृति के सारे जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल आ जाता है। सो नाउ नो इच्छा, नो तृष्णा, वी हैव रीच टू गुण वैतृष्णा। कोई इच्छा ही नहीं है तो कोई कर्म बनेगा?
नो कर्म। अगर कर्म ही नहीं बनेगा तो कर्म का फल आएगा नहीं, फिर क्लेश आएगा नहीं। सो वो सब धीरे धीरे नलिफाइड हो जाए। ऋषि पतंजलि says when we reach to that level is known as sampragyata samadhi. First chapter 17th sutra. Sampragyata samadhi means we are having no unnecessary disturbing thought. We are becoming focused. We are becoming one-pointed on that object. Whether that object is my heart, whether that object is my palpitation, whether that object is my breath, whether that object is that light within me, the sound within me, any of these things, and I am concentrating. So हम कोशिश करते हैं वो sound क्या है, या तो वो what is that light, what is that pran, what is that धबकारा. We are thinking about it. Yes, and that's why it is with reasoning, it is with deliberation or reflection, and we feel nice, we feel happy, and that's why it is with bliss, ananda, and this asmita. And that's why that level is known as sampragyata samadhi. And other, where we are not having any thought, that is known as asampragyata samadhi. When the samadhi is with thought, it is sabija samadhi. When we go beyond that, no seed, no thought at all. अगर एक थॉट है तो वो एक ही थॉट रहेगा क्या? एक थॉट है तो एक ही थॉट रहता है क्या? एक भी थॉट है तो मतलब वो वृक्ष बनने वाला है, वो जंगल बनने वाला है. इट इज विचार प्रवाह, राइट? तो एक भी थॉट नहीं रहेगा. सो देन इट इज थॉटलेस समाधि. दैट इज व्हाट इज निर्विचार समाधि. And so Rishi Patanjali says that we are traveling towards this level of Nirvichara Samadhi. There on the way, we get Adhyatma Prasada. Adhi Atmani Prasada. We get Prasada means what? Prasannata. Prasannata because of what? Adhi Atmani. When we start going towards Atma, realizing our own self, our own pure consciousness, that is Adhyatma Prasada. Who am I? और what is my Atma? मेरा आत्मा है क्या? कौन है वो? Purusha. So I start knowing, connecting to that Atma Tattva. Correct? This Atma Tattva is Sat, Chit, Ananda, yes or no? It is Satchit Ananda. And that's why it is Rita principle or not? My Atma Tattva is Satchit Ananda. Satchit Ananda is what? Rita principle is what? Eternal principle. And that's why that samadhi or that level of concentration is known as Ritambhara Pragya. There are thoughts, there are understanding, there is knowledge. Yes, there is the knowledge about Atma. Yes, about Atma. But it is about the eternality of the self. And that's why it is known as Ritambhara Pragya. And हम लोग ऋतंभरा प्रज्ञा पे पहुंच गए तो मने बधु आवड़े छे, MBA बन गए हम लोग, और वहां पे खुश होकर के अटके रहे. तो वहां पे खुश है? हाँ है. But is it the highest station, last station? No. Rishi Patanjali says when we are not getting stuck at that level also, still we go higher to that. Okay? And so then we start, so Rishi Patanjali says, tasyapi nirodhe. You know, हमारा ये जो ऋतंभरा का ज्ञान है, अध्यात्म का प्रसाद है, वहां पे अटकने के बिना, उसके बाद से खुद के बारे में ज्ञान होना और मैं खुद वो हूं, उसका एक्सपीरियंस होना, वो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? शक्कर बनना और शक्कर खाना. अगर मैं शक्कर खाती हूँ तो मैं और शक्कर अलग है. But when I become shakkar, means what? I become pure consciousness. I realize that I am pure consciousness only. Correct? And so that level of realization that I am pure consciousness कब आता है? जब ये ज्ञान का लेवल है ना वो छोड़ते हैं, तो वो जो लास्ट सीढ़ी है ना उसको भी जब छोड़ते हैं तो
Then हम लोग गर्भगृह में ईश्वर से मिलने के लिए we become one with the pure consciousness. ऋषि पतंजलि says तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात् we reach to nirbija samadhi. And then when we reach to this nirbija samadhi, no thought. If there is no thought, what is there? It is just awareness. Awareness about what? Awareness about the self, pure consciousness, as it is established in Sat Chit Ananda Avastha. And that's why this level is nothing else but Kaivalya or Chiti Shaktir Iti. It is nothing else but pure consciousness as it is established in Sat Chit Ananda Avastha. May we all reach to this Kaivalya in this very life itself. Namo Namaha. Thank you so much. मॉक टेस्ट करनी है कि लास्ट टाइम कर लिया है, मजा आया, अभी इसमें क्या करने की जरूरत है? शुड बी ओके. सो व्हाट, मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद कर दूं तो? नमो नमः. थैंक यू सो मच. मे वी ऑल रीच टू दिस कैवल्य इन दिस वेरी लाइफ. मैडम आप तो एग्जाम में दर्शन होंगे आपके, एग्जाम में दर्शन होंगे मैडम, एग्जाम में मिलेंगे तो आपने, एग्जाम में